Hi Forensic Eye, my name is Salman Hashmi. Today we're standing in a place where nobody is taking the coverage, and it's only Sufi Salman Hashmi, the Forensic Eye guy, who is covering the protest here in Islamabad. And we are working very hard to listen to the public, what the public is saying. So these guys have traveled around the world. They come from a long way, and they're just protesting on a main cause. So today we got a scholar here, and unfortunately he's going to explain in Urdu, the language. So the topic here we're going to start today is why they are sitting here. So आप अपना नाम बताएंगे प्लीज? इस्लामिक स्कॉलर मुजीबुर रहमान। ठीक है जी। तो सर आप क्यों आज बैठे हैं? जी हमारा चौथा दिन आज 13 जुलाई से अंदर बैठे हैं। फ़लस्तीन के मामलात में जो उधर मज़ालिम हैं और हमारी माएँ बहनें बच्चियाँ जो हैं वो तड़प रही हैं, सक रही हैं, हमें वो बुला रही हैं, हम इस वजह से बैठे हैं। So what they are saying now, I'm going to translate today for the whole world, that they're sitting for the cause of Palestine. The kids, the boys, the adults has been killing over there, and they are supporting them. They're suffering. They say why this is happening. So we are very thankful to you, sir. And what is आपके क्या नुकात हैं? 3 नुकात हैं जो आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं? सादे से नुकात हैं, हमारी ख्वाहिश से कुछ और है, लेकिन हम सादे से ये नुकात हुकूमत को अर्ज़ किए हैं। एक पहला ये है कि उनको दहशतगर्द करार दिया जाए हुकूमत की सतह पर। वो दहशतगर्द हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ये हुकूमत की सतह पर उनको दहशतगर्द करार दिया जाए। वो फ़लस्तीन हमारे और नहीं आप कर सकते मदद, तो सिर्फ़ और सिर्फ उनको दहशतगर्द करार दिया जाए। पहला अहम नुक्ता ये है। दूसरा ये है कि उनकी मसनूआत का I'm going to translate now. They are sitting, they're telling that why they got 3 demands from the government of Pakistan. The one demand is that the Israeli Prime Minister, he's ordering to kill the innocent people, the kids, and they want them to be called as terrorists. So this is the biggest terrorism presently in 22nd century. The guys who are doing is them. So this is their agenda, sir. और दूसरा आपका क्या है सर? दूसरा हमारा अहम नुकात ये है कि उनकी मसनूआत का हुकूमती तौर पर बाइकाट किया जाए। And the second demand of these guys, Tehreek-e-Labbaik of Pakistan, they're demanding from the government of Pakistan that all the Israeli products which are coming in Pakistan has to be banned by the bill. So they are very educated people, and they are very peaceful. They want to do things in peace. They are very peaceful guys. And और तीसरी बात क्या है सर आपकी? तीसरी बात ये है कि हमारे 1 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी मज़लूम जो हैं वो ज़ख्मी हैं और शदीद ज़ख्मी, उन तक फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद पहुँचाई जाए। And the third demand of these guys, the protesting guys from the government of Pakistan, that 100,000 people has been injured and they have not been hospitalized. They haven't got any medicine. For them, they say that we need the surety from the government of Pakistan that please send the medicines, send the doctors, so they get the medicine. The kids are killing there, so this is very bad. और सर बाकी आप जो आज का दिन है, आप कितने दिनों से बैठे हैं? ये चौथा दिन है। और मीडिया आपको कवरेज नहीं दे रही? मीडिया, प्रिंट मीडिया जो बिल्कुल कवरेज नहीं दे रहे हैं। आप देखें ये पीसफुल हम बैठे हैं इधर, पुरअमन बैठे हैं हम, आप और and this is the dilemma of Pakistan, that we are living in a fake world, fake news, and the real news, what is happening on the road, people are not looking at that. From the 13th of this month, the protest is going on. The Twin City has been closed. Nobody can go, nobody can pass through, and no media channel, no print media, no electronic media, nothing are showing them. So this is very bad. We are requesting the government of Pakistan that please let the freedom of speech. Pakistan is a very good nation. We need a freedom of speech. We need freedom of thinking, freedom of speech, freedom of protest. These are peaceful guys. They are doing peace. तो सर क्या मैसेज देते हैं आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से? कोई अच्छी बात करें, आप स्कॉलर हैं। जी हम अर्ज़ करना ये चाहते हैं कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी मुसलमान को कोई तकलीफ़ होती है तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो तकलीफ़ मुझे होती है,
या अय्युहल्लज़ीयु हर्रिल मुमिनीन अल-क़िताल यकुम मिनकुम इश्रुन साबिरुन यग़लिबु मिअतैन। आपने फरमाया कि मुसलमान मोमिनो, जब आप तक कोई तकलीफ पहुँचे तो आप इकट्ठे होकर, और एक हुज़ूर अलैहिस्सलाम को फरमाया हर्रिल मुमिनीन अल-क़िताल, तो आप मुसलमानों को उस पर उभारें ताकि वो मुत्तहद होकर उनके खिलाफ हो जाए। हम अब इधर टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। उम्मत मुसलमान जो है 57 ममालिक मुसलमान हैं, वो इस तरह तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और कुरान का फ़ैसला ये है कि हम साथ होकर मिलकर और उनका सामना करें। हम ये कुरान और अहादीस का मजमूआ ये कि हम साथ में नहीं हैं, और कुरान और हदीस के रूह से, और अल्लाह ताला ने हमें ये रास्ता दिया है, हमारा हक़ है हम साथ होकर मिलकर इकट्ठे होकर इनका जिहाद करें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है एक पार्टी अब इधर बैठी है, और हम आप रियलिटी आप ग्राउंड की देखेंगे तो हमको 4 दिन से बैठे, और प्रेस मीडिया जो है कह रही है कि एम्बुलेंसों को नहीं देने जा रहे, ये इधर आकर बैठ गए ऐसे जत्था मारकर। आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंसें जा रही है, बिल्कुल हम उनको छोड़ रहे हैं। इस तरह के हम So what these guys are saying that we are very respectful political party. We are letting through the ambulances and all the emergency guys who want to go to the hospital. Nobody is stopping them. They are good people. They're working for Pakistan. Sir, we are proud of you to be a Pakistani. आपने पाकिस्तान नेशन का सर पूरी दुनिया में बुलंद किया है। हम आपके बहुत थैंकफुल हैं। आप माशाल्लाह जो कॉज कर रहे हैं, पाकिस्तान की इज्जत बढ़ा रहे हैं। लोगों को अभी बात ये समझ नहीं आ रही, ये पाकिस्तान की इज्जत बना रहे हैं, और हम एक हक के साथ खड़े हो रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला सर फोरेंसिक आई तहरीक लब्बैक के साथ खड़ी है। ये उस टाइम भी हमने रिजवी साहब को फर्स्ट टाइम से जिन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वर्ल्ड को बताया कि व्हाट दिस ओल्ड मैन इज सेइंग, द क्रिपल्ड गाय, जिसकी टांगें भी ख़राब है, ठीक है, और वो बेचारा इस सर्दी धूप में बैठ के उसने अपनी बात की और मिशन बनाया। आज उन्हीं का पौधा लगा हुआ है, ये सारा पौधा उन्हीं का लगा हुआ है, तो वर्किंग हार्ड है। बाकी फोरेंसिक आई के लिए सर कुछ कहेंगे आप हमारे चैनल के लिए और आप मीडिया के लिए? आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, आपने अपना हक़ अदा किया है। अल्लाह ताला आपको और इज़्ज़तें दे, अल्लाह ताला आपके माल में और आपकी जो सारी टीम है उनको शादाबाद रखे, हक़ का साथ दिया करें, और अल्लाह ताला भी हक़ वालों के साथ है, और जुल्म जो है वो मिटने वाला है, जब बढ़ेगा वो मिटेगा। उनमें ये ही एक कहते हैं कि जुल्म जब भी बढ़ता है, साफ़ी हो चाहे कोई भी हो, हम बैठे अगर हम जुल्म कर रहे हैं तो अल्लाह ताला हमें भी इस जहान से बर्बाद करे। अगर हम हक़ पर हैं तो अल्लाह ताला हमारा साथ दे रहा है और हमें देगा भी, और ये हम इधर से कामयाब होकर पहले भी गए हैं हक़, और अब भी हक़ आया। इंशाअल्लाह ताला ये हक़ अपना पावर रखता है, और इंशाअल्लाह ताला हक़ के साथ हम Thank you sir, कामयाब thank you, होंगे। God bless you. We working for the Pakistan. Thank you sir, thank you sir, thank you. Hi Forensic Eye, my name is Salman Hashmi. Today we're standing in a place where nobody is taking the coverage, and it's only Sufi Salman Hashmi, the Forensic Eye guy, who is covering the protest here in Islamabad, and we are working very hard to listen the public, what the public is saying. So these guys has traveled around the world, they come from a long way, and they're just protesting on a main cause. So today we got a scholar here, and unfortunately he's going to explain in Urdu, the language. So the topic here we're going to start today is why they are sitting here. So आप अपना नाम बताएंगे प्लीज? इस्लामिक स्कॉलर मुजीबुर रहमान। ठीक है, तो सर आप क्यों आज बैठे हैं? जी, हमारा चौथा दिन आज 13 जुलाई से इधर बैठे हैं फ़लस्तीन के मामलात में, जो इधर मज़ालिम हैं और हमारी माएँ बहनें बच्चे जो हैं वो तड़प रही हैं, सक रही हैं, हमें वो बुला रहे हैं, हम इस वजह से बैठे हैं। So what they are saying now, I'm going to translate today for the whole world, that they're sitting for the cause of Palestine. The kids, the boys, the adults has been killing over there, and they are supporting them. They're suffering. They say why this is happening. So we are very thankful to you, sir. And what is आपके क्या नकात हैं? 3 नकात हैं जो आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं? सादे से नुकात हैं, हमारी ख्वाहिश से कुछ और है, लेकिन हम सादे से ये नुकात हुकूमत को अर्ज़ किए हैं। एक पहला ये है कि उनको दहशतगर्द करार दिया जाए हुकूमत की सतह पर। वो दहशतगर्द हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ये हुकूमत की सतह पर उनको दहशतगर्द करार दिया जाए। वो फ़लस्तीन हमारी और नहीं आप कर सकते मदद, तो सिर्फ़ और सिर्फ उनको दहशतगर्द करार दिया जाए। पहला अहम नुक्ता ये है।
दूसरा ये कि उनकी मसनूआत का Yeah, just I'm going to translate now. They are sitting, they're telling that they got a 3 demands from the government of Pakistan. The one demand is that the Israeli Prime Minister he's ordering to kill the innocent people, the kids, and they want them to be called as terrorists. So this is the biggest terrorism presently in 22nd century. The guys who are doing is them. So this is their agenda, sir. और दूसरा आपका क्या है सर? दूसरा हमारा अहम नुकात ये है कि उनकी मसनूआत का हुकूमती तौर पर बाइकाट किया जाए. And the second demand of these guys, Tehreek-e-Labbaik of Pakistan, they're demanding from the government of Pakistan that all the Israeli products which are coming in Pakistan has to be banned by the bill. So they are very educated people and they are very peaceful. They want to do things in peace. They are very peaceful guys. And और तीसरी बात क्या है सर आपकी? तीसरी बात ये है कि हमारे 1 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी मज़लूम जो हैं वो ज़ख्मी हैं और शदीद ज़ख्मी, उन तक फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद पहुँचाई जाए. And the third demand of these guys, the protesting guys from the government of Pakistan, that 100,000 people has been injured and they have not been hospitalized. They haven't got any medicine. For them, they say that we need the surety from the government of Pakistan that please send the medicines, send the doctors, so they get the medicine. The kids are killing there, so this is very bad. और सर बाकी आप जो ये आज का दिन है, आप कितने दिनों से बैठे हैं? हम ये चौथा दिन है और मीडिया आपको कवरेज नहीं दे रही? मीडिया, प्रिंट मीडिया जो बिल्कुल कवरेज नहीं दे रहे हैं. आप देखें ये पीसफुल हम बैठे हैं इधर, पुरअमन बैठे हैं हम, आप और yeah, and this is the dilemma of Pakistan, that we are living in a fake world, fake news, and the real news, what is happening on the road, people are not looking at that. From the 13th of this month, this is the protest is going on. The Twin City has been closed. Nobody can go, nobody can pass through, and no media channel, no print media, no electronic media, nothing are showing them. So this is very bad. We are requesting the government of Pakistan that please let the freedom of speech. Pakistan is a very good nation. We need a freedom of speech. We need freedom, freedom of thinking, freedom of speech, freedom of protest. These are peaceful guys. They are doing peace. तो सर क्या मैसेज देते हैं आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से? कोई अच्छी बात करें, आप स्कॉलर हैं. जी हम अर्ज़ करना ये चाहते हैं कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी मुसलमान को कोई तकलीफ़ होती है तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो तकलीफ़ मुझे होती है. या अय्युहन नबिय्यु हर्रिल मुमिनिन अल-क़िताल यकुम मिनकुम इश्रुन साबिरुन यग़लिबु मिअतैन. आपने फरमाया कि मुसलमान मोमिनो, जब आप तक कोई तकलीफ़ पहुँचे तो आप इकट्ठे होकर, और एक हुज़ूर अलैहिस्सलाम को फरमाया हर्रिल मुमिनिन अल-क़िताल, तो आप मुसलमानों को उस पर उभारें ताकि वो मुत्तहद होकर उनके खिलाफ़ हो जाए. हम अब इधर टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं. उम्मत मुसलमान जो है 57 ममालिक मुसलमान हैं, वो इसे तवज्जो नहीं दे रहे हैं. और कुरान का फ़ैसला ये है कि हम साथ होकर मिलकर और उनका सामना करें. हम ये कुरान और अहादीस का मजमुआ ये कि हम साथ में नहीं हैं, और कुरान और हदीस के रूह से, और अल्लाह ताला ने हमें ये रास्ता दिया है, हमारा हक़ है हम साथ होकर मिलकर इकट्ठे होकर इनका जिहाद करें. तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान जो है एक पार्टी अब इधर बैठी है, और हम आप रियलिटी आप ग्राउंड की देखेंगे तो हमको हम 4 दिन से बैठे, और प्रिंट मीडिया जो है कह रही है कि एम्बुलेंसों को नहीं देने जा रहे, ये इधर आकर बैठ गए ऐसे जत्था मारकर. आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस से जा रही है, बिल्कुल हम उनको छोड़ रहे हैं. इस तरह के हम So what these guys are saying that we are very respectful political party. We are letting through the ambulances and all the emergency guys who want to go to the hospital. Nobody is stopping them. They are good people. They're working for Pakistan. Sir, we are proud of you to be a Pakistani. आपने पाकिस्तान नेशन का सर पूरी दुनिया में बुलंद किया है. हम आपके बहुत थैंकफुल हैं. आप माशाल्लाह जो कॉज कर रहे हैं, पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ा रहे हैं. आप लोगों को अभी बात ये समझ नहीं आ रही, ये पाकिस्तान की इज़्ज़त बना रहे हैं, और हम एक हक़ के साथ खड़े हो रहे हैं. और इंशाल्लाह ताला सर फोरेंसिक आई तहरीक-ए-लब्बैक के साथ खड़ी है.
ये उस टाइम भी हमने रिजवी साहब को फर्स्ट टाइम से जिन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वर्ल्ड को बताया कि व्हाट दिस ओल्ड मैन इज सेइंग, द क्रिपल्ड गाय, जिसकी टांगे भी ख़राब है, ठीक है, और वो बेचारा इस सर्दी धूप में बैठ के उसने अपनी बात की और मिशन बनाया। आज उन्हीं का पौधा लगा हुआ है, ये सारा पौधा उन्हीं का लगा हुआ है, तो वर्किंग हार्ड है। बाकी फोरेंसिक आई के लिए सर कुछ कहेंगे आप हमारे चैनल के लिए और आप मीडिया के लिए? आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, आपने अपना हक अदा किया है। अल्लाह ताला आपको और इज़्ज़तें दे, अल्लाह ताला आपके माल में और आपकी जो सारी टीम है उनको शादाबाद रखे, हक का साथ दिया करें, और अल्लाह ताला भी हक वालों के साथ है, और जुल्म जो है वो मिटने वाला है, जब बढ़ेगा वो मिटेगा। उनमें ये ही एक कहते हैं कि जुल्म जब भी बढ़ता है, साफ़ी हो चाहे कोई भी हो, हम बैठे अगर हम जुल्म कर रहे हैं तो अल्लाह ताला हमें भी इस जहान से बर्बाद करे। अगर हम हक पर हैं तो अल्लाह ताला हमारा साथ दे रहा है और हमें देगा भी, और ये हम इधर से कामयाब होकर पहले भी गए हक, और अब भी हक आया। इंशाअल्लाह ताला ये हक अपना पावर रखता है, और इंशाअल्लाह ताला हक के साथ हम कामयाब होंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी वर्किंग फॉर द पाकिस्तान। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।